Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Dr. Muhammad Salim, Assistant Professor, University of Education, DG Khan Campus. This is our first lecture on advanced stereochemistry. The student of MS Chemistry with organic specialization will focus on this lecture. Our first lecture is on stereochemistry and chirality. Overview of the lecture is we will go through the introduction of stereochemistry, then what is stereochemistry and history, importance of chirality in drugs, basic concepts and stereochemistry and chirality. If we look at the definition of stereochemistry, is the study of the static and dynamic aspects of three-dimensional shapes of molecule. Furthermore, it deals with the properties of stereoisomers, 3D arrangement of atoms or molecules in space. This is the 3D structure in which here this is the central carbon atoms in which 4 different substituents are attached in tetrahedral form. Interestingly, one thing you must note that we cannot draw the 3D model on the paper as well as on the whiteboard. It's very difficult because we have only 2 dimensions on the whiteboard and on the white paper. That is why to understand the stereochemistry, it is very important you must understand what is the meaning of stereo means in space. Actually, this is the Greek word. Its meaning is in space chemistry. It means we study the arrangement of atoms in space. Every isomer has different arrangement of atom in space. That is why compounds have different physical and chemical properties due to arrangement of atoms in space. Look at the structure of lactic acid. These are 2 isomers of lactic acid. One is negative lactic acid and other is plus lactic acid. I mean, this is levorotatory, this is dextrorotatory. Both enantiomers are non-superimposable mirror image. Mirror image means you can see over here that OH reflect this OH and carboxylic acid reflect this carboxylic acid. When we uplift the molecule and placed on other molecules, then it becomes non-mirror image relationship. An important branch of stereochemistry is the study of chiral molecules. Another point of stereochemistry is that here we study the compounds having chiral characteristics. कि जिन compounds की chiral characteristics उनको हम stereochemistry में discuss करते हैं. Stereochemistry spans the entire spectrum of organic, inorganic, biological, physical and especially supramolecular chemistry. Stereochemistry includes methods for determining, describing these relationships, the effect on the physical or biological properties these relationships impart upon the molecule in question, and the manner in which these relationships influence the reactivity of the molecule in question. This is dynamic stereochemistry. History of stereochemistry. The origin of stereochemistry stems from the discovery of plane polarized light by Moelis in 1809. By in 1811, they discovered that quartz plates, when cut at right angle to its crystal axis, rotate the plane of polarized light through an angle proportional to the thickness of the plate. This is the phenomenon of optical rotation. Howe had already noticed in 1801 that quartz crystal show the phenomena of hemihedrism. Certain facts of the faces of the crystals are so disposed that superposable species A and B are produced. Hemihedrism
These are mirror image of each other. If we placed mirror, then these two are mirror image. Hemihedrism of quartz crystal, B is mirror image of A. This is mirror image of A. Such mirror image crystals are called enantiomorphous. ऐसे क्रिस्टल जो आपस में मिरर इमेज हों, जिनकी खसूसियत आपस में हो कि मिरर इमेज हों, ऐसे इमेजेस क्रिस्टल्स को हम enantiomorphous कहते हैं. Enantios is the Greek word, means opposite, morph means form. जिनकी opposite forms हों उनको enantiomorphous कहलाते हैं. और Sir John Herschel discovered that there is a relation between hemihedrism and optical rotation. The enantiomorphous crystals rotate the plane of the polarized light in opposite direction. जो enantiomorphous crystal होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मुखालिफ सिमत में रोटेट करते हैं. मीन्स अगर एक प्लस है तो वो डेक्स्टो रोटेटरी है, अगर एक माइनस है तो वो लीवो रोटेटरी है. They both rotate the plane of polarized light in opposite direction but in equal amount because these are enantiomorphous. Pasteur found that molecules of organic compounds, as for example tartaric acid, rotate the plane of the polarized light to the right. He separated the crystal of sodium ammonium tartrate with the help of lens in 1948. Pasteur in 1860 realized the analogy between crystal and molecules. He postulated that the molecular structure of plus and minus tartaric acid must be related as object and its mirror image. Went off in 1874, 1875 and Liebel in 1874 independently and simultaneously proposed enantiomerism in a substance of type CABCD, means here A, B, C and this is D. The four substituents are arranged tetrahedrally around the central carbon atom. This is the central carbon atom. The four substituents are arranged around this central carbon atom in a tetrahedral form. This is the tetrahedral form. This was the history of stereochemistry. And furthermore, the other example include thalidomide, an often cited example of importance of stereochemistry relates to the thalidomide disaster. When thalidomide comes to the market, then a disaster started. Thalidomide is a pharmaceutical drug first prepared in 1957 in Germany, prescribed for treating morning sickness in pregnant women. The drug was discovered to be teratogenic, causing serious genetic disorder to early embryonic growth and development, leading to limb deformation in babies. Some of the several proposed mechanisms of teratogenicity involves a different biological function for R and S thalidomide. These are the structures of two enantiomer. One is S form and other is the R form. Here only the difference between two is the stereo center. अब इसमें देखें सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर चेंज होने से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो गई. मींस एक स्टीरियो आइसोमर जो है वो यूजफुल है, दूसरा एनांशियोमर जो है वो हार्मफुल है.
तो स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स। इन द ह्यूमन बॉडी हाउएवर थैलिडोमाइड अंडरगो रेसिमाइजेशन। एक और पॉइंट है कि ह्यूमन बॉडी में जब थैलिडोमाइड एब्जॉर्ब होती है तो रेसिमाइजेशन होती है, मींस दो इनांशोमर बनते हैं, एक प्लस का और एक नेगेटिव का। इवन इफ ओनली one of the two enantiomer is administered as a drug, the other enantiomer is produced as a result of metabolism. This is the ड्रॉबैक ऑफ दिस ड्रग कि अगर हम एक ड्रग दे दें, एक कंपाउंड मींस सपोज टू बी, अगर हम आर वाला एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, आर वाला हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो दूसरा एस ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हो जाएगा। रिजल्ट of metabolism, accordingly it is incorrect to state that one stereoisomer is safe while the other is teratogenic. Thalidomide is currently used for the treatment of other diseases, notably cancer and leprosy. Strict regulations and controls have been enabled to avoid its use by the pregnant women and prevent developmental deformation. This disaster was a driving force behind requiring strict testing of drugs before making them available to the public. These are the two structures again of thalidomide. Here is the 3D model. This is the 3D model of the drug thalidomide. Stereogenicity and stereoisomerism is the phenomena. This is new terminology in stereochemistry. Here you can see that this is stereo center, this is stereo center, this is stereo center and this is stereo center. अगर आप इसमें देखें, ये जो डॉटेड लाइन है प्रोजेक्टिंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये है ये बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन है, एक प्लेन पीछे की तरफ है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। वाइल द बोल्ड लाइन प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द व्यूअर। अब दिस इज कॉल्ड अबव द प्लेन। इसको हम, ये जो होती हैं और ये वाली, इनको हम कहते हैं दीज आर अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। एंड ये जो डॉटेड लाइन है, दीज डॉटेड लाइंस, इनको हम कहते हैं बिलो द प्लेन। Here the concept of stereogenicity and stereoisomerism originate that अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियो सेंटर होगा तो उस सेंटर को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं, उससे जो आइसोमर बनेगा दूसरे वाला उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाता है ये। In this diagram you can see hydrogen projecting towards the viewer। ये जो हाइड्रोजन है ये बोल्ड है। Here again hydrogens are projecting towards the viewer। Isomers and its types की जब हम बात करते हैं, compounds having same molecular formula but different structural formula are called isomers. This is the simple definition of isomer and this phenomena is called isomerism। इस phenomena को हम isomerism कहते हैं। अगर आइसोमर्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो हम उनको कहते हैं दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अगर उनकी कनेक्टिविटी सेम है तो हम इनको कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स लीड टू द formation of chain isomers, position isomer, functional group isomer, metamers, while stereoisomers again divided into conformational isomers and configurational isomers. If a rotation about the single bond makes them identical, अगर सिंगल बॉन्ड के दरमियान रोटेशन उनको एक जैसा बना दे तो conformational isomers like this
rotation around the single bond is, these are conformers. This is the single bond. Means this bond can be rotated 1000 times, and at every angle you will get different stereoisomer. If the bond must be broken and reformed, अगर उसमें बॉन्ड बनता भी है, टूटता भी है और रिफॉर्म्ड भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स. क्या कहते हैं इसको? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर. कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन के दरमियान बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताऊं कि कन्फर्मेशन का मतलब है रोटेशन, कन्फर्मेशन रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड. कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर के पहले बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, उसके बाद रिफॉर्म होगा, तो उससे जो आइसोमर बनेगा वो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होगा. फर्दर हम जब इसकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की, इफ़ दे आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज, तो हम उनको कहते हैं कि ये डायस्टेरियो आइसोमर्स हैं. अगर वो सिंपल इम्पोजर मिरर इमेज हों तो उनको हम इनैंशियोमर्स कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट के दो के दरमियान डिफरेंस ये है डायस्टेरियो आइसोमर और इनैंशियोमर्स के दरमियान कि इनैंशियोमर्स मीन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, just like our hand. These are non-superimposable mirror image. आप देखें हमारे फेस को, जब आप शीशे में देखते हैं तो आपका नोज रिफ्लेक्ट करता है, जब आप देखते हैं आपकी आईज रिफ्लेक्ट करती हैं, तो आपका जो पूरा फेस है दिस इज मिरर इमेज. क्योंकि जो आपका फेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो चीज़ आपको नजर आ रही है, इसी तरह हैंड एक दूसरे हैंड को देखते हैं. थंब विल सी द थंब and forefinger will see the forefinger, and middle finger will see the middle fingers, and small finger will see the small fingers. Then these are mirror image. But अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखें तो मीन्स थंब आउटवर्ड प्रोजेक्ट करेगा और ऑल द फिंगर्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगी. तो ये है इनैंशियोमर्स की डेफिनेशन. जबकि जो डायस्टेरियोमर्स हैं उनकी ये है, ना तो वो मिरर इमेज होते हैं, ना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर्स इफ दे हैव नो स्टीरियोजेनिक सेंटर. इंटरेस्टिंगली डायस्टेरियोमर समटाइम डायस्टेरियोमर्स के अंदर स्टीरियो सेंटर होता है. एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर हो तो वो डायस्टेरियोमर पॉसिबल होता है. अगर सिर्फ एक इनैंशियोमर हो, एक स्टीरियो सेंटर हो, तो उससे इनैंशियोमर बनते हैं. अगर उनमें स्टीरियो सेंटर ना हो और बॉन्ड कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो तो उनमें क्या होगा कि जो उससे बनेगा जी ज़ोसमैन एंटोजन सीसाइड एंड ट्रांसाइड सीज एंड ट्रांसफॉर्म. दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ डायस्टेरियो आइसोमर्स. फर्दरमोर आई विल एक्सप्लेन the connectivity over here, that you can see the position of fluoro group here is at position 1 and 2 position. Here it is on 1 position. So these are constitutional isomers due to position की वजह से. And stereoisomers spatial isomers mean arrangement of atom in space. तो इससे जो इनैंशियोमर बनेंगे जैसे like this, these two are नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. दरमियान में एक ये मिरर लगा दिया तो ये फ्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लोरो कर रहा है, हाइड्रोजन को. लेकिन अब इस पूरे को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोज जो इनैंशियोमर है. डायस्टेरियोमर की बात करते हैं तो अगर उनमें स्टीरियो सेंटर ना हो, जैसे मैंने बात की, अगर एक जैसे ग्रुप एक साइड पे हों तो उनको कहते हैं सीज आइसोमर. अगर एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड पे हों तो हम इनको कहते हैं ट्रांस आइसोमर. दिस इज सीज टू ब्यूटीन एंड दिस इज ट्रांस टू ब्यूटीन. सिमिलरली समटाइम देयर आर कन्फर्मेशंस के कन्फर्मेशन मीन्स रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड, और इनसे जो बनेंगे वो बनेंगे रोटामर्स. तो इससे डिफरेंट किस्म के डायस्टेरियोमर पॉसिबल होते हैं. तो दिस वाज द सिंपलेस्ट about the isomerism.
बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी between the atoms, as for example 1 bromo and 2 bromobutane. These are constitutional isomers. As I have shown in the other slides, the constitutional isomers mean connectivity का difference होता है. Stereoisomers molecule that have the same connectivity but different in arrangement of atom in space, cis and trans to butene. Enantiomers are non-superimposable mirror image of each other, and diisomers mean stereoisomers that are not enantiomers. Enantiomers mean, आप इनको देखें कि ये जो enantiomers नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज हैं, इसकी और इसकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो enantiomers की है. इसी तरह इसकी और इसकी जो आपस में रिलेशनशिप है वो enantiomers की रिलेशनशिप है. ये enantiomers हैं क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, इससे इनको enantiomers कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. Conformational isomers are interconvertible by rotation about the single bond, just like a molecule of ethane. Then you can see that this group can rotate around the single bond 1000 times. आप इसको rotate करते रहें 10 angle, 20 angle, 30 angle, every time you will get different isomer. तो ये conformation है. Configuration isomers, stereoisomers, stereochemical isomers including enantiomers and diisomers, इसमें दोनों होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन में enantiomers भी होते हैं और diastereoisomers भी होते हैं. ये एक ख़ास बात है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स की कि जिनके अंदर ये दोनों हों, enantiomer भी हों और diastereoisomer भी, तो उनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर. कॉन्फ़िगरेशन, द relevant position, the relative position or the order of arrangement of atom in space which characterize a particular stereoisomers. Chiral, any object that is non-superimposable with its mirror image, तो हम उसको chiral कहते हैं. जैसा कि प्लस माइनस लैक्टिक एसिड की एग्जांपल दी. achiral, if an object is not chiral, it is achiral. मीन्स अगर कोई chiral नहीं है तो achiral कहलाएगा. इसको हम एसिमेट्रिक कहते हैं. एसिमेट्रिक, कैरल को एसिमेट्रिक भी कहते हैं. जबकि एक कैरल को सिमेट्रिक कहते हैं. सिमेट्री मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल हाफ में तकसीम करें तो उसके अंदर सिमेट्री होगी. अगर किसी के अंदर सिमेट्री है तो वो एक कैरल है. अगर जिसके अंदर ए कार्बन है तो वो कैरल है. अ मॉलिक्यूल इज ए कैरल, एक मॉलिक्यूल इज एक इफ इट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे आइसोमर के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो, सुपर इम्पोजेबल, तो वो होगा a chiral object. A molecule which has a plane of symmetry, और दूसरी प्रॉपर्टी बात कर रहा है. अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री हो और रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो तो वो भी a chiral होगा. एंड एक्सल सिमेट्री, अगर किसी के अंदर एक्सल सिमेट्री तब भी वो a chiral होगा. A molecule is achiral if it is superimposable on its mirror image. A molecule which has a plane of symmetry, a central symmetry, a rotation reflection symmetry is achiral. अब देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है. अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनर सिमेट्री भी हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो तो वो मॉलिक्यूल achiral होगा. अब इस मॉलिक्यूल को देखें, अगर हम इसको रोटेट करें किसी भी एंगल के ऊपर तो हमें जो इमेज मिलेगा वो मिरर इमेज होगा, लाइक दिस.
अब देखो हमने इसको सिंपल रोटेट किया, अब ये वाला इसके मिरर इमेज है। तो कैरल, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अब देखें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये पार्ट इस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी तरह इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या होंगे, ए कैरल होंगे। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि ये है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर से लाइन पास करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जब देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये ए कैरल कहलाते हैं। मीजो कंपाउंड्स दैट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बट आर नेवरथलेस ए कैरल, तो उनको हम मीजो कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कैरल सेंटर तो हो लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर भी हो, जो कहलाता है कि उनमें उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, मींस एक पार्ट दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। What is chirality? The word chirality from the Greek word refer to the property of hand-handedness. ये property, to first approximation your right and left hands are mirror images but they cannot be superimposed। अब देखें आपका ये हैंड राइट हैंड और आपका लेफ्ट हैंड ये क्या है, मिरर इमेज तो है। मिरर मीन्स आपका ये जो थंब है ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी ये जो फोर फिंगर है इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये मिरर इमेज है, आपस में क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, मींस सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्रेलिटी। द वर्ड क्रेलिटी फ्रॉम द ग्रीक रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस। एक्चुअली ये लफ्ज जो ओरिजिनेट हुआ है हैंडेडनेस से हुआ है। द टू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन योर राइट एंड लेफ्ट हैंड्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। Chirality is just continued molecules that lack both a mirror plane and an inversion center can have non-superimposable mirror image and are said to be chiral. A chiral center usually is tetrahedral carbon with 4 different groups attached to it. Chiral carbons are also referred to as stereocenter, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और एसिमेट्रिक सेंटर्स। आप देखें एग्जांपल 1 ब्रोमो 1 क्लोरोइथेन इज अ कैरल। क्यों? क्योंकि इसमें देखें एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं और इसका दूसरा जो एनंशियोमर है वो मिरर इमेज है। ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मिरर प्लेन है। दिस इज मिरर इमेज। ये क्या है? मिरर इमेज। फर्दर मोर अगर हम इसको ऐसे तरीके से रोटेट करें कि मॉलिक्यूल्स की रोटेशन से मिरर ना पले, तो ये आपस में एनंशियोमर नहीं है। दीज आर नॉट एनंशियोमर्स। non-enantiomers. Chirality, a molecule that has an internal mirror plane. अगर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी आप देखें, इसके अंदर जब हम मिरर प्लेन रखें तो सिमेट्री है। अगर हम 2 को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये पार्ट इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का ये पार्ट मिरर इमेज है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको, तो सेंटर में मिरर प्लेन है। तो मिरर प्लेन की वजह से मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, एक ए मॉलिक्यूल दैट हैज एन इन्वर्जन सेंटर इज ए कैरल। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इन्वर्जन सेंटर हो, ये इन्वर्जन सेंटर मीन अगर हम उसको रोटेट करें, रोटेट करने के बाद
90 पे रोटेट किया, फिर हमने 180 पे रोटेट किया एंड वी गॉट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। बच्चों इसमें कहने का मतलब ये है, अगर हम 90 डिग्री मीन ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री रोटेशन के बाद सेम मॉलिक्यूल हमें मिले तो हम इसको इन्वर्जन सेंटर कहते हैं, और ये भी शो करता है कि कंपाउंड्स को ये चीज ए कैरल कर देती है रादर देन कैरल। फर्दर एग्जांपल्स ऑफ ए कैरल एंड कैरल मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पे देखें, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये ब्रोमो एंड ये ब्रोमो, तो ये ए कैरल होगा। 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। इसमें देखें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी ए कैरल। अब इसमें भी देखें, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी ए कैरल। अब इसमें देखें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लोरो, मिथाइल, ब्रोमो एंड प्रोटॉन, तो ये चीज इसको कैरल कर देती है। दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज कैरल। ये कंपाउंड क्या है? कैरल है। अब इसमें देखें, इस कंपाउंड को देखें, दिस इज कैरल। क्यों ये कैरल है? क्योंकि इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। सेंट्रल, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, ये भी सेंट्रल कार्बन एटम है। इसी तरह ये कंपाउंड भी, इसमें भी ये सेंट्रल कार्बन एटम है, ये भी सेंट्रल कार्बन एटम है। तो ये चीज कैरलिटी को शो करती है कि ये कैरल मॉलिक्यूल्स हैं। क्लासिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मस्ट हैव एन एक्सेस ऑफ वन एनोमर racemic mixture or racemate, a 50-50 mixture of enantiomers and is not optically active। जाहिर है 50 एक है तो 50 दूसरा है। मीन्स अगर एक इनांशियोमर 50% राइट को रोटेट करता है तो दूसरा इनांशियोमर 50% लेफ्ट को मूव करेगा, तो दोनों का जो असर है वो कैंसिल हो जाएगा। जब हम नेट रोटेशन मालूम करेंगे, अल्फा मालूम करेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन, तो वो 0 हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है कि जो रेसिमिक मिक्सचर है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसका जवाब है नो। मीन्स जो रेसिमिक मिक्सचर है वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती है रेसिमेट की। मीन्स प्लस और माइनस इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं। हाउएवर enantiomers that do not have dramatically different refractive indexes would not result in measurable rotation. In this case they are optically inactive even though they are chiral optically active. Chiral centers are chiral कार्बन asymmetric center भी कहलाता है। An atom are specifically carbon respectively that has 4 different ligands attached, जिसके साथ 4 different groups attach हों तो उसको हम chiral carbon exist in molecules that are neither asymmetric nor chiral. Many molecules can exist in enantiomeric forms without having a chiral center. बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो एनांशियोमेरिक फॉर्म में रहते हैं विदाउट हैविंग अ कैरल सेंटर। वो ये हैं, इनके अंदर कैरल प्लेन होती है। इसके अंदर भी कैरल प्लेन है, ये वाली कैरल, इसको कैरल प्लेन कहते हैं। इनको कहते हैं कंपाउंड डेविड ऑफ कैरलिटी, ये कैरल प्लेन कहलाती है। तो इनमें कैरल सेंटर तो नहीं होता लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कैरल प्लेन। इस कैरल प्लेन की वजह से क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर यूज दिस टर्म इंस्टेड ऑफ कैरल सेंटर। इट इज स्टीरियोजेनिक सेंटर इफ द इंटरचेंज ऑफ 2 ligands attached to it can produce a new stereoisomer. A non-stereogenic center is one in which exchange of any pair of ligand does not produce a stereoisomer.
The term stereogenic center is broader than the term chiral center. आप इसमें देखें, ये chiral center है, रोटेट किया दूसरा एनांटियोमर बन गया। अब देखें इसमें chiral प्लेन है, ये जो कहलाती है ये, इसको chiral प्लेन कहते हैं। ये वाली ये जब ड्रा की मैंने, ये chiral प्लेन है। अब इस chiral प्लेन अब हम जस्ट रोटेट करते हैं, मीन्स स्वैप टू लिगेंड्स, मीन इंटरचेंज करते हैं। एक लिगेंड दूसरे से क्या होगा, इंटरचेंज होगा। मिथाइल को प्रोटॉन से हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें एक दूसरा एनांटियोमर मिलेगा। इसी तरह ये जो है ये सिस ट्रांस आइसोमर है। ये क्या है, सिस ट्रांस आइसोमर। लेकिन इनमें कैरल सेंटर नहीं है। इसी तरह हेटेरो एटम्स हैं, फास्फोरस टाइप हैं, ये भी दो लिगेंड को हम इंटरचेंज करें वी विल गेट अनदर एनांटियोमर। इधर भी ऐसे ही है। अगर इसमें देखें ये कार्बन है, इसके साथ ये मुख्तलिफ एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लगे हुए हैं, तो सेंटर डज नॉट गारंटी द कैरल कार्बन। अब मुख्तलिफ ये गारंटी नहीं कि ये कैरल कार्बन होगा। हाउएवर इस ग्रुप इज ऑलवेज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, लेकिन इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर कह सकते हैं। अब कैरलिटी और स्टीरियोजेनिसिटी में दो मोड हैं। मीन्स अगर किसी कंपाउंड के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरल होगा। कैरल के लिए ये शर्त स्टीरियोजेनिक सेंटर है ही नहीं। अगर स्टीरियोजेनिसिटी है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस सिमेट्री है, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, तो अगेन वो ए कैरल हो जाएगा। इसलिए कैरलिटी एंड स्टीरियोजेनिसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स। आर द स्टीरियोजेनिक सेंटर्स नॉट बी कैरल सेंटर, बट ऑल द कैरल सेंटर आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। जितने कैरल सेंटर हैं वो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं, बट जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर सब के सब कैरल नहीं हो सकते। ये देखें, इस एग्जाम्पल में स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात की है। अब R2 ब्यूटानोल इंटर कन्वर्टेड टू लिगेंड्स, हमने दो लिगेंड्स को इंटर कन्वर्ट किया, इसको इसके साथ इंटर कन्वर्ट किया। ये हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सल आपस में क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ S2 ब्यूटानोल। तो जो दोनों आपस में क्या है, एनांटियोमर हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स अगेन मीसो टार्टारिक एसिड इंटर कन्वर्टिंग टू लिगेंड प्रोड्यूस अ न्यू स्टीरियोसोमर्स। अगर हम इनको आपस में चेंज कर दें, इन टू स्टीरियोसन दो लिगेंड्स को, तो उससे जो हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर मिलेगा ये RR टार्टारिक एसिड है। ये हम RR और RS नॉमेनक्लेचर कहलाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि R और S नॉमेनक्लेचर क्या होता है। यहाँ पे तो जस्ट आपको हम ये बताएं, इलस्ट्रेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन वेदर इन ए कैरल मॉलिक्यूल लाइक 2-butanol और एन ए कैरल मॉलिक्यूल लाइक मीसो टार्टारिक एसिड। इसको मीसो क्या कहते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से प्लेन गुजारें, एक पार्ट दूसरे पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ टू लिगेंड्स एट अ स्टीरियो सेंटर प्रोड्यूस अ न्यू स्टीरियोसोमर्स। हम एक जगह पे लिगेंड्स को इंटरचेंज करते हैं, एक हमें न्यू स्टीरियोसोमर मिलता है। स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर्स में RS सिस्टम, कहान, इंगोल्ड, परिलाग सिस्टम, ये तीन साइंटिस्ट थे, कहान, इंगोल्ड, परिलाग। इन्होंने एक सिस्टम दिया। R रेक्टस राइट को कहते हैं, S सिनिस्टर लेफ्ट को कहते हैं। मीन्स ग्रुप्स की एलिमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं। इसको हम अगर ऐसे कंसीडर करें, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, ये जो CIP रूल कहलाता है, दिस इज कॉल्ड CIP रूल। CIP रूल, ये नेक्स्ट हम लेक्चर में डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे कि CIP रूल क्या होता है। मीन जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हम उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। आइसोटोप्स, द वन विद हायर मास इज असाइंड द हायर प्रायोरिटी। आइसोटोप में भी देखना है, अगर जिसकी
जिसका मास ज़्यादा होगा, हायर मासेस विल बी असाइंड हायर प्रायोरिटी। ट्राई कोऑर्डिनेट स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, आप इसमें देखें फैंटम एटम द लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब इसमें देखें ये आर है, ये क्या है इसका एस एनंशोमर है, ये आर है और ये एस है, तो ये दोनों के दोनों इनंशोमर में इनको ट्राई कोऑर्डिनेट स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कहलाते हैं। ट्राई कोऑर्डिनेट। इजी सिस्टम की बात करते हैं, ये भी एक किस्म का नॉमेनक्लेचर है, जैसे सीज ट्रांस है, इसी तरह इजी एंटोजेनिन और जोसामिन। इसमें भी हम सेम फेज पे अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी, अब देखें हाईएस्ट प्रायोरिटी इधर है और लोएस्ट प्रायोरिटी इधर है, तो ये कहलाएगी ई एन ई अल्कीन। अगर सेम प्रायोरिटी सेम फेज के ऊपर है तो वो कहलाएगा जी। ई का मतलब है एंटोजेनिन अपोजिट, जी का मतलब है सेम। जोसामिन, if an hydrogen atom is on each of the double bond, conventionally cis and trans are formed। अगर हाइड्रोजन एटम एक ही मीन्स जैसे कि ये है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो ये होगी सीज फॉर्म। और इसके मुकाबले में जो इसकी ट्रांस फॉर्म होगी ये इसकी होगी ट्रांसफॉर्म। ये डिपेंड करता है, ईजी का जो सिस्टम है वो सिस्टम से मिलता जुलता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो फिर वो सीज ट्रांस कहलाएगा। ये इसकी सीज फॉर्म है और ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, सीज फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये था अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट जो है असाइनमेंट है, इसमें आपने इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द कैरल सेंटर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने कैरल सेंटर बताने हैं कि इसमें कितने कैरल सेंटर हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। इसी तरह इसके ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्टीरियोसोमर ऑफ दिस कंपाउंड एंड इंडिकेट विच आर इनैंशियोमर्स एंड विच आर डायस्टेरियोसोमर, लेबल आर स्टीरियोसेंटर एज आर एस। आपने आर एस भी बताना है इसका। यू हैव परचेज अ स्मॉल sample of 100% enantiomerically pure compound from Eldridge Chemical. Upon measuring the optical rotation, you are distracted assistant reporter or rotation of 0. You double check for yourself and see the following views through the eyes. No sample inserted, plain polarized eye. What are the two plausible explanation if you have 30 minutes? What experiment should you do to determine if Eldridge Chemical should refund your money? अगर आप कहते हैं कि ये इसमें कोई इनैंशियोमर नहीं था, तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपको अपनी रकम वापस कर दें? जो आपने परचेज किया वो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रॉ द इनैंशियोमर्स फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड असाइन आर कैरल सेंटर एज आर एंड एस। इसमें आपने हर एक का इनैंशियोमर भी ड्रा करना है कि दूसरा इसका इनैंशियोमर कौन सा हो सकता है और कितने इनैंशियोमर पॉसिबल हैं, और इसमें आर एस सेंटर भी बताना है कि इसमें आर कहाँ है, इसमें सेंटर स्टीरियो सेंटर कहाँ है। हर किसी में आपने स्टीरियो सेंटर के बारे में बताना है और आर एस को भी डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें आर एस सिस्टम कौन सा होगा। अब ये जो हमारी असाइनमेंट है, इट इज़ वेरी बेसिक। आपने इन सब सवालों को हल करना है खुद से ट्राई करें कि आप सॉल्व कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी इसमें आप कोई मुश्किल पेश हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, यू कैन आस्क मी फॉर एनी क्यूरी।
I am here to help you. And this was our first lecture on stereochemistry. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, यू आर फ्रीली टू कॉल मी फॉर योर एनी क्वेश्चन फॉर योर सब्जेक्ट मैटर्स. आई एम हेयर टू यू. तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा. देन थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.